Good morning, all my dear students. Today we are starting with the first chapter of Power Quality and Management, that is Introduction to Power Quality. आपका जो first chapter है, it is the Introduction to Power Quality. So let us understand what is the definition of power quality and the various terms which are related to power quality and management. So सबसे पहले हम देखते हैं कि definition of power quality. So as per IEEE, it defines that power quality is the ability of a system or an equipment to function satisfactorily in its electromagnetic environment without introducing intolerable electromagnetic disturbance to anything in that environment. पावर क्वालिटी का बेसिक मीनिंग क्या होता है कि आपको कंटिन्यूस सप्लाई मिले एंड क्वालिटी ऑफ वोल्टेज भी मेंटेन रहे. तो एज पर IEEE जब भी कोई भी पावर क्वालिटी की हम बात करते हैं तो वो एक सिस्टम का एक एबिलिटी है जिसमें वो अपने इक्विपमेंट को प्रॉपरली फंक्शन करने के लिए परमिशन देता है एज वेल एज उसमें कोई भी और एक्स्ट्रा डिस्टर्बेंसेस नहीं आती हैं. So it will be basically dealing with better or improvement of the voltage quality as well as the current quality also. Okay. Now, what is power quality? It is the electrical network or the grid's ability to supply a clean and stable power supply. कोई भी इलेक्ट्रिकल ग्रिड है उसका मेन एम क्या होगा कि आपको उसमें कंटिन्यूस सप्लाई मिले, क्योंकि जो हमारे हैवी लोड्स होते हैं दे आर completely dependent on the automatic work that is going on. So if the supply breaks or if the supply is cut, there may be many damages to the system. So that is why the main function of power quality is to have a continuous supply of electricity and that also a stable kind of supply. But कई बार ऐसा होता है that many times occurrence of voltage, current or frequency deviations results in failure or disoperation of the end use equipment. पर कई बार क्या देखा गया है कि वोल्टेज करंट या फ्रीक्वेंसी डेविएशन के वजह से क्या होता है, हमारा इक्विपमेंट फेलियर हो जाता है, which is not a good sign because it will damage many other parts and it will affect various other part of the system. Okay. Now is categories and characteristic of power system. अगर आप categories देखेंगे power system के बारे में तो कौन कौन सी ऐसी problems हैं जो एक power system में आ सकती हैं. We will not go into the typical spectral content or the typical duration, but I will only tell you about the categories. जैसे कि under voltage अकर हो सकता है कोई भी system में, over voltage आ सकता है, voltage unbalance हो सकता है, wave distortion, DC offset, harmonics, intra-harmonics, notching, noise, voltage fluctuation and power frequency variations. So इतनी चीज़ें हैं जो basically कोई भी power system में अकर होती है. Okay. Now, these are the basic power quality issues that will be mitigated using STATCOM. इन्होंने एक suppose एक DVR है, STATCOM है, TCSC है, ये सारे हमारे fax devices हैं. For example, I am going with one of the fax devices से STATCOM. So कोई भी प्रॉब्लम आ रहा है, कोई भी फेलियर आ रहा है सिस्टम में या सिस्टम मिस ऑपरेट कर रहा है, तो क्या होगा अगर हम स्टैटकॉम जैसा कोई भी डिवाइस अगर हम सिस्टम में इंट्रोड्यूस करते हैं तो उसके वजह से क्या होगा, आप देख सकते हैं कि जो हमारा डिस्टॉर्टेड वेव है वो प्रॉपर साइनसॉइडल वेव पे कन्वर्ट हो जाएगा. दिस इज ओनली अ फिगर टू एक्सप्लेन यू हाउ पावर क्वालिटी वर्क्स. ओके, कोई भी डिस्टॉर्टेड सिग्नल है उसको मैं एक प्रॉपर स्मूथ सिग्नल में कन्वर्ट कर रही हूँ. सो दैट इज द मेन वर्क ऑफ एनी power quality engineer as well as it is a work of any fax device also. Okay. Now talking about the definition, causes and consequences of power quality issues. सबसे पहले types of power qualities issue है तो उसमें आप सबसे पहला देख सकते हैं कि transients हैं. तो definition क्या है transients का? It is the momentary burst of energy
that are induced upon power, data or communication lines. ओके, ट्रांजिएंट क्या है? सडनली आपका जो एनर्जी जा रहा है सिस्टम में वो अचानक से बढ़ जाए. ओके, एंड बर्स्ट ऑफ एनर्जी रेट दैट आर इंड्यूस्ड अपॉन पावर डेटा, या कम्युनिकेशन लाइन को या पावर डेटा को डिस्टर्ब करें. इसका कॉज क्या क्या होता है? अगर लाइटनिंग स्ट्रोक हो जाए, सडन आपने स्विचिंग कर दिया है, या आर्सिंग हो जाए, इसके वजह से ट्रांजिएंट्स अकर होते हैं. तो इसके कॉन्सिक्वेंसेस हैं हायर टेम्परेचर ऑफ मोटर, या हाई मोटर लॉसेस, वाइब्रेशन, नॉइज. तो ये सारे इसके रीजंस हैं. नाउ टॉकिंग अबाउट द वोल्टेज करंट सैग. Voltage current sag, a decrease in RMS voltage current between 0.1 per unit and 0.8 per unit for a duration from 0.5 cycle to 1 minute. ये definition है इसका. तो इसके basic causes क्या है? इसके causes होते हैं कि starting a large load, loose or defective wiring, faults और short circuit. आप सडनली कोई भी लोड को, हैवी लोड है उसको शुरू कर दिया, या सडनली उसको स्टॉप कर दिया, या कहीं भी आपके वायरिंग में कोई फॉल्ट है, तो इन सब रीज़न की वजह से वोल्टेज या करंट सैग अकर होता है सिस्टम में. इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या हैं? माल फंक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इक्विपमेंट, ट्रिपिंग ऑफ द कॉन्ट्रैक्टर्स एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रिलेज. इन रीजंस की वजह से वोल्टेज या करंट सैग अकर होता है किसी भी सिस्टम में. नाउ टॉकिंग अबाउट द डेफिनेशन, कॉजेस एंड कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ power quality issues, but talking about the voltage current swell and harmonic distortion. Okay, so definition of this voltage current swell is an increase in RMS voltage. Swell is increase, okay, sag is the decrement. So definition is when an increase in RMS voltage or current between 1.1 per unit and 1.8 per unit at a power frequency for a duration of 0.5 cycles to 1 minute. So in this we have, what is the reason behind voltage and current swell? Okay, so the reason behind voltage and current swell is the badly regulated transformers, or you stop the heavy load suddenly. Okay, that is the reason behind voltage and current swell. Now what happens because of voltage and current swell? Data loss, stoppage और डैमेज ऑफ सेंसिटिव इक्विपमेंट. जो सेंसिटिव इक्विपमेंट्स हैं उनको ज़्यादा इफेक्ट होगा करंट या वोल्टेज स्वेल से, बिकॉज जो वोल्टेज लेवल है वो अब्रप्टली बहुत ही इंक्रीज हो गया है इस रीज़न से. ओके, नाउ द फोर्थ वन इज हार्मोनिक डिस्टॉर्शन. हार्मोनिक डिस्टॉर्शन मीन्स जो वेव फॉर्म है इट करस्पॉन्ड्स टू द सम ऑफ डिफरेंट साइन वेव्स with different magnitudes and phase having frequencies that are multiples of power frequency. Okay, now when we are talking about the causes of harmonic distortion, उसका reason है आर्क फर्नेस है, वेल्डिंग मशीन्स है, रेक्टिफायर्स है. इसके वजह से हार्मोनिक या डिस्टर्बेंस अकर होती है कोई भी सिस्टम में. कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे इसके कि न्यूट्रल ओवरलोड इन 3 फेज सिस्टम, ओवरहीटिंग ऑफ द केबल्स, लॉस ऑफ एफिशिएंसी इन द इलेक्ट्रिकल मटेरियल्स. इलेक्ट्रिकल मटेरियल्स में जो एफिशिएंसी है वो भी कम हो जाएंगी. सो हार्मोनिक डिस्टॉर्शन इज सच अ बिग डील दैट वी हैव टू मिटिगेट द हार्मोनिक्स. किसी भी सिस्टम में जो हमारा टोटल हार्मोनिक डिस्टॉर्शन होता है हमें उसे हमेशा रेक्टिफाई करने की कोशिश करनी होती है और हमें उसे कम करना होता है. वी हैव टू रिड्यूस द लेवल ऑफ द टोटल हार्मोनिक डिस्टॉर्शन. Now coming to the very basic of this is what is IEEE 519. Okay, ये IEEE 519 क्या है? So it is the recommended practice and requirements for harmonic control in power system. पावर सिस्टम में हमें किस तरीके से इक्विपमेंट का यूज़ करना है और उसकी कौन सी बेसिक रिक्वायरमेंट होती है वो डिफाइन करता है हमारा IEEE एक्ट. सो इट इज़ अ सिस्टम गाइडलाइन. ये एक सिस्टम गाइडलाइन है जिसमें हम वोल्टेज एंड करंट की वैल्यू को सेट करते हैं एंड वो डिस्टॉर्ट ना हो जाए या डेविएट ना हो जाए उसके लिए इन द इलेक्ट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम एट PCC. ना वोल्टेज डिस्टॉर्शन लिमिट्स की हम बात करें तो आप देख सकते हैं कि इसमें मैंने 3 टेबल्स बनाए हैं. वन इज़ द इंडिविजुअल वोल्टेज डिस्टॉर्शन परसेंटेज एंड टोटल वोल्टेज डिस्टॉर्शन परसेंटेज. ओके,
नाउ अगर मैं आपको बोल रही हूँ इफ़ इट इज़ फॉर 69 किलो वोल्ट एंड बिलो, ओके, बस वोल्टेज, तो आपका इंडिविजुअल वोल्टेज 3% तक अलाउड होगा एंड टोटल वोल्टेज डिस्टॉर्शन आपका 5% तक अलाउड है। पर सपोज अगर आपका बस वोल्टेज वैल्यू है वो 69 से लेके 161 किलो वोल्ट का है, तो आपको 1.5% ही अलाउड है for individual voltage distortion, and for total voltage distortion only 2.5% is allowed. Now talking about the 161 kilovolt and above, then we have individual voltage distortion of 1% and total voltage distortion of about 1.5 percentage. Okay, now करंट डिस्टॉर्शन लिमिट्स बाय IEEE 519 के बारे में हम बात करें, सो दिस इज कम्प्लीटली डिराइव्ड फ्रॉम द IEEE 519। ओके, कौन कौन से इसके लिमिट्स हैं? अगर आप करंट की वैल्यू आप देख रहे हैं इसमें, सो करंट डिस्टॉर्शन लिमिट्स फॉर जनरल डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, ओके, जनरल डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के लिए आप परसेंटेज में ही है ये, अगर इफ इट इज मोर देन 20, इफ इट इज मोर देन 20 देन टोटल डिस्टॉर्शन अलाउड इज 5%। आप लास्ट वाला कॉलम देखें इसमें। Okay, so what is TDD? Is the total demand distortion. PCC is the point of common coupling. Okay, IL is the maximum demand load and ISC is the maximum short circuit current at PCC. Okay, see, harmonics are limited to 25% of the odd harmonics limit. पर जो हमारा current distortions है उसमें हमें क्या क्या देखना पड़ता है कि हाफ वेव कन्वर्टर्स का आप यूज़ नहीं कर रहे हैं, दे आर नॉट अलाउड। ओके, सो इफ द रेंज इज बिटवीन 20 to 50 then 8% is allowed. If it is between 50 to 100 then 12% is allowed. If it is between 100 and 1000 then 15% is allowed, and if it is more than less than 1000 then it is 20% is allowed. Okay, so this is how your current distortion limit is also set. Now problem definition and types of load. Okay, we know that growing number of loads are sensitive to customers critical process. वी डोंट नो कि कौन से सेक्टर में किस तरीके का लोड हम यूज़ कर रहे हैं। कुछ सेक्टर होंगे जहाँ पे हम बहुत ही लाइट लोड यूज़ करते हैं, कुछ सेक्टर्स होंगे जहाँ पे हम बहुत ही हैवी लोड यूज़ करते हैं। सो बेस्ड ऑन दिस वी डिवाइड द टाइप्स ऑफ लोड। ओके, सो टाइप्स ऑफ लोड आप इसमें देख सकते हैं, वन इज़ द नॉन लीनियर लोड एंड वन इज़ द लीनियर लोड। ओके, सो बेसिकली व्हाट इज़ लीनियर एंड व्हाट इज़ नॉन लीनियर, we will try and understand that linear is something in which we will be getting the VI characteristic to be a very straight line, and non-linear मतलब जहाँ पे आपका VI characteristic है वो straight line नहीं है। Okay, so these are the two basic definitions for the two. Now अगर मैं नॉन लीनियर लोड्स के बारे में बात कर रही हूँ तो उसमें कौन कौन से नॉन लीनियर लोड्स आते हैं, जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक बलास्ट है, SMPS है, आर्क फर्नेस लोड है, लेज़र प्रिंटर्स है, रेक्टिफायर्स हैं, ये सब आपके नॉन लीनियर लोड्स होते हैं। लीनियर लोड्स क्या है? ट्रांसफार्मर का मोटर है। ओके, तो जो चीज़ कंटिन्यूस आप उसका अगर रिकॉर्डिंग कर रहे हैं वोल्टेज एंड करंट वैल्यू का, और अगर आपको एक लीनियर ग्राफ मिलता है, इसका मतलब क्या है? विद द इंक्रीज इन वोल्टेज current is increasing or vice versa. So V is directly proportional to I. That shows it is a linear load. If it is not like that, then these are non-linear loads which are fluctuating time and again. Okay, so this was all about the types of loads that we are seeing. Now what is the problem solution? अगर इस तरीके से हमारे पास बहुत सारे disturbances रहेंगे डिवाइसेस में, तो हम क्या करेंगे? वी विल गो विद द कस्टम पावर डिवाइस, CPD। ओके, उससे क्या होगा? हम कस्टमर्स को एक बेटर सोल्यूशन दे पाएंगे पावर क्वालिटी प्रॉब्लम के लिए। और वो कैसे पॉसिबल है? फैक्ट्स कंट्रोलर इंस्टॉलेशन वर्ल्ड वाइड, ऐसी चीज़ों को इम्प्रूव करने के लिए हम फैक्ट्स कंट्रोलर का यूज़ करते हैं। तो आप इसमें देख सकते हैं जो लाइटर ब्राउन कलर का है दैट इज सीरीज कंट्रोलर। So maximum we use series controller. उससे कम which is in brown color is the shunt controllers, and the very less used, or we can say the hybrid controllers, also called as the combined controllers, they are used to specially have a basic control over the power quality disturbances, and उसको हम uproot भी कर सकते हैं
हम उसको completely उसमें से निकाल भी सकते हैं. So these are the basic divisions of controllers that we are using in the latest technologies. Okay. Now types of filter to improve power quality. In this we will be having the types of filters, which is active filter, passive filter. Active filter is again divided into the two, that is shunt controller and series controller. Passive filter is only a combination of inductor and capacitor. ये हम आगे पढ़ेंगे. This is just the basic of what kind of filters are used. Okay. टाइप्स एंड बेनिफिट्स ऑफ इम्प्रूव्ड पावर क्वालिटी. अगर आपको एक इम्प्रूव पावर क्वालिटी मिल जाता है तो इसका क्या बेनिफिट रहेगा. ओके, व्हाट इज़ द बेनिफिट बिहाइंड दिस. सबसे पहले तो इकोनॉमिक इम्पैक्ट है ना. तो जो पावर फैक्टर पेनाल्टीज़ हैं वो कम हो जाएंगी, सिस्टम लॉसेस कम हो जाएंगे, पावर सर्विस इनिशियल कैपिटल इन्वेस्टमेंट भी कम हो जाएगा. सो इतनी चीज़ें हैं जो कम्प्लीटली हमारा पावर क्वालिटी इम्प्रूवमेंट पे डिपेंड करता है. The second one is the equipment reliability. We all know that अगर हमारा पावर बेटर है, अगर आपने पावर क्वालिटी को इम्प्रूव किया है तो वो सिस्टम और ज़्यादा रिलायबल हो जाएगा, आप उसको और बेटर तरीके से यूज़ कर पाएंगे. ओके, एंड उसका जो लाइफ स्पैन है वो भी इंक्रीज हो जाएगा. नाउ थर्ड वन इज़ द पावर सिस्टम एडिक्वेसी. पावर सिस्टम एडिक्वेसी मीन्स ऐसा नहीं होगा कि जो इररिलेवेंट पावर कट हो जाता है वो आएगा. ओके, दैट विल ऑल्सो नॉट बी सीन बिकॉज it will be a smooth connection. The output that you are getting is a pure sinusoidal wave. So basically in the subject of power quality and management, what you are doing is एक distorted signal है उसको आप convert कर रहे हैं एक pure sinusoidal wave में. So इसमें अगर आपने हर सिस्टम में अपने वेव को या हर सिस्टम में आपने इस वोल्टेज को स्मूथ रखा है, देन द पावर सिस्टम एडिक्वेसी विल बी क्लियर एंड it will enhance the lifespan of the system. Okay, now for example the last one is environment. How will it improve the environment? We know that the better the power, okay, better is the sustainability. जितना अच्छा पावर होगा उतना ज़्यादा सस्टेनेबिलिटी होगा किसी भी सिस्टम का, एंड दिस इज़ हाउ यू विल नॉट बी इफेक्टिंग एनीथिंग इन द नियर बाय एनवायरनमेंट. ओके, आप ज़्यादा से ज़्यादा जो सपोज ऑलरेडी लोकेटेड या इंस्टॉल्ड स्टेशंस है उसमें अगर हम पावर क्वालिटी का प्रॉब्लम ही सॉल्व कर दें तो क्या होगा, वी डू नॉट हैव टू गो फॉर मोर फीडर्स और वी डोंट हैव टू गो फॉर मोर इंस्टॉलेशंस. ओके, सो इट विल डायरेक्टली और इनडायरेक्टली हेल्प द एनवायरनमेंट. एंड दिस वन इज़ द परफॉर्मेंस एनालिसिस ऑफ फैक्ट्स कंट्रोलर. इसमें कुछ फैक्ट्स कंट्रोलर के नाम हैं ऊपर, जैसे कि SVC है, TCSC है, TCPST है, स्टैटकॉम है, SSSC है, UPFC है, IPFC है. नाउ आउट ऑफ दिस which one is good, which one is better? This is just a chart, just because this is your introduction lecture, but I will be showing you, we will be doing this all the facts controller one by one, जिसमें हम क्या क्या कंसिडर करेंगे. हम कंसिडर करेंगे इसकी MVA कैपेसिटी, हम कंसिडर करेंगे इसके रिएक्टिव पावर कंट्रोल, वी विल बी कंसिडरिंग इट्स वोल्टेज कंट्रोल, थर्मल स्टेबिलिटी, ट्रांसमिशन कॉम्पिटेंसी, ट्रांजिएंट स्टेबिलिटी एंड द इन्वेस्टमेंट कॉस्ट. इतनी चीज़ें हम इसमें कंसिडर करेंगे. ओके, एंड अगेन दिस इज द परफॉर्मेंस एनालिसिस ऑफ द फैक्ट्स कंट्रोलर. ओके, कि किसका परफॉर्मेंस एनालिसिस बेटर है. Okay, this is only shown in the form of a table. Okay, but we will compare all of them. We will be comparing कि latest trend में कौन सा चल रहा है and which one is better. Okay, so with this our today's lecture on introduction to power quality ends here. I request you all to kindly see the videos and answer the questions given in Google Classroom. Thank you.